Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Neha. As you must have guessed from the very thumbnail of this video that we are going to exclusively talk about American literature. As I've promised in my previous video that this video will soon be uploaded, and here I am with my version of 19th century American literature. See, American literature is essentially now for the exams we are talking about is prescribed in HPSC PGT and also prescribed in upcoming EMRS Tier 2 objective subjective exam. तो ये अपने आप पे बहुत ज्यादा जरूरी है. When we study as English literature graduates, when we study British literature, we know that it starts from Chaucer and it goes up till T.S. Eliot and for that matter other Commonwealth writers or contemporary writers. But what about American literature? If I ask you people to align the writers that are given in your syllabi, align them as per their chronology or as per the age or the movement they belong to, will you be able to do so? No. The answer will exactly be no. And the reason is because American literature, the history of American literature is neither asked, but we understand it from the representative writers. From the day one, I have been stressing upon this thing that the social, political, and historical background is as much important as the concerned writer and his work. जितना एक राइटर इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड है जिससे वो बिलोंग करता है. तो आज इस वीडियो में मैं फ्रॉम द वेरी रूट आपको लेकर के चलती हूँ उन राइटर्स तक जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, उन मूवमेंट्स तक जिनसे वो बिलोंग करते हैं. हमारे लिए अमेरिकन लिटरेचर का बैकग्राउंड, बैकड्रॉप, हिस्टोरिकल, सोशल, पॉलिटिकल इवन रिलीजियस समझना बहुत जरूरी है इन राइटर्स को और ज्यादा रेलेवेंट बनाने के लिए. सो विदाउट मच अडू, HPSC PGT के स्टूडेंट्स, EMRS टायर 2 में बैठने वाले स्टूडेंट्स एंड इवन आने वाले NTA UGC नेट की प्रिपरेशन को किक स्टार्ट करने वाले स्टूडेंट्स, ये वीडियो इंट्रोडक्टरी है, बहुत हेल्पफुल है स्पेशली सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए. तो कीप योर बुक्स एंड ईयर्स completely open and keep a note as I teach you 19th 20th century American literature. Be very clear with the fact that this is the part 1 of this video. This video will be followed by part 2 also, so stay tuned to our YouTube channel. First of all, American literature as compared to British literature is a pretty young literature. And when I say this thing, it is a pretty young literature because it was in the 15th century only that America was discovered by Christopher Columbus. Christopher Columbus found a new land. He found a new world in the name of America, with the name of America. So it was in the 15th century only that Christopher Columbus found America. That makes it a nation, a newly found world. If we look at England, if we look at British literature, we start our preparation from Beowulf, from 5th or 6th century. But it's in the 15th century that America is being found. And in the upcoming centuries, it will be colonized by English people. For the sake of development, for the sake of colonization, it will be colonized. So it's a new world in 16th and 17th century, following 15th century, because 15th century England की अगर हम बात करते हैं, during that time England भी अपने growth spurt में था. 15th century में हम कौन कौन सी war देखते हैं? War of Roses को देखते हैं हम, यहाँ पर केज रिबेलियन को देखते हैं, लेकिन इसके बाद फॉलो करना था रेनेसा ने. रेनेसा के टाइम पर कौन सी क्वीन थी? हमारी गोल्डन क्वीन थी
वर्जिन क्वीन थी क्वीन एलिजाबेथ. क्वीन एलिजाबेथ ने इंग्लैंड को एक न्यू शेप एंड आइडेंटिटी दी थी, एंड ऑल ड्यू टू दैट शी वाज द वन इन हुज रूल स्पेनिश अर्माडा से जीता गया था. इन्हीं के रूल में ही स्टार्ट हुआ था कॉलोनाइजेशन का आइडिया. ब्रिटेन को, इंग्लैंड को वर्ल्ड पावर बनाने का आइडिया हमारी गोल्डन क्वीन एलिजाबेथ से स्टार्ट होता है और क्वीन विक्टोरिया तक जाएगा, हमारी विक्टोरियन एज तक जाएगा. तो जो इंग्लिश बैकग्राउंड है वो अमेरिकन बैकग्राउंड से बहुत लिंक्ड और जरूरी हो जाता है, क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्वीन एलिजाबेथ ओनली कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ था. 16th एंड 17th सेंचुरी में ईस्टर्न पार्ट ऑफ अमेरिका में माइग्रेशन स्टार्ट हुआ था. माइग्रेशन के बाद जो है कॉलोनाइजेशन स्टार्ट होगा, और कॉलोनाइज ईस्टर्न पार्ट में अगर हम अमेरिका को डिवाइड करते हैं इस तरीके से, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, तो माइग्रेशन यहां से स्टार्ट हुआ था. एंड वेस्ट वाज टेकन टू बी वाइल्डरनेस, जहां पर रहते थे रेड इंडियंस. And you know what? These red Indians are basically Native Americans. अब कहोगे नेहा मैम ये क्यों जरूरी है? अरे भाई, एक जगह की लिटरेचर से एसोसिएट करने के लिए ये सब पढ़ना बहुत जरूरी हो जाएगा आपके लिए. तो वेस्टर्न फ्रंट पे रहते थे रेड इंडियंस, नेटिव्स ऑफ, they were actually the native people of America who were living there. 1607, that means in 17th century में जेम्स टाउन फर्स्ट कॉलोनी बनाई गई है. जेम्स टाउन, अब इसका नेम जेम्स टाउन क्यों रखा गया है? बाय किंग जेम्स. किंग जेम्स रूल कर रहे थे ड्यूरिंग दिस टाइम. सो किंग जेम्स, as we know, he took all the treasuries, he took the belief system of Queen Elizabeth ahead. He was a king of Scotland, but because Queen Elizabeth died without any heir, he became King James I of England, and behind his name, उनके नाम पर जेम्स टाउन रखा गया, वर्जीनिया नेम रखा गया. इन टोटो 13 कॉलोनीज बनाई गई जो रूल करती थी, जिन पर रूल करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट. ब्रिटिश गवर्नमेंट इन पर रूल करती थी, जो कौन हो गई? किंग जेम्स की. इज दैट क्लियर अप टिल नाउ? आते हैं 1920 पर भी आते हैं. देखिए अब यहां से क्या बात शुरू होती है. बेंजामिन फ्रैंकलिन एक फिजिसिस्ट है. वो जानते थे कि इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है, फ्रीडम बहुत ज्यादा जरूरी है एक नेशन की डेवलपमेंट, ग्रोथ, आइडेंटिटी के लिए. वट एवर द रेड इंडियंस, वट एवर अमेरिका एज अ कंट्री इज फेसिंग इज sheer struggle. It's a phase of struggle. So Benjamin Franklin and Thomas Paine, they were sort of initiators of the idea of independence. जैसे हमारे यहाँ मुल्क राज आनंद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इंडियन इंग्लिश नॉवेल में, जिन्होंने प्रोजेक्ट किया है अनटचेबिलिटी को, वैसे थॉमस पेन, he belonged to America, most probably I think he was born in Boston only, and as a result of which he came up with a pamphlet in the year 1775, somewhere near 1775 or 1776, that talked about common sense, and this pamphlet urged American revolution. This essay urged that people of America should revolt against the British Empire. So Thomas Paine की writing हमारी इनिशियल राइटिंग्स मानी जाती है यूएस अमेरिकन लिटरेचर की. सी, इन्होंने थॉमस पेन की राइटिंग्स पर रिप्लाई किया एडमंड बर्क ने. एडमंड बर्क एक इंग्लिश राइटर हैं,
इन्होंने रिप्लाई किया और कहा कि rather than focusing on revolution you should focus on evolution. बट आपको पता है कहीं से स्पार्क स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है. अमेरिकन रेवोल्यूशन का आइडिया आ चुका है through Benjamin Franklin and through Thomas Paine, and as a result of which there are a series of replies goes between Edmund Burke, between Thomas Paine, and between these two writers there is one Mary Wollstonecraft who also replied to this rights of man, writing a vindication to the rights of a man, and also followed by vindication to the rights of a woman, Mary Wollstonecraft. So in the year 1776 America was declared independent, independence of अमेरिका. अब यहां से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है क्योंकि हर चीज का बेस जानते हैं जब आप, तो जो आप पढ़ रहे हैं उसकी वैलिडिटी, उसमें इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. तो उसे इंटरेस्ट को जगाने के लिए उसी पैशन के साथ, जिस पैशन के साथ वही शेक्सपियर को पढ़ते हो उसी पैशन के साथ आप वॉल्ट विटमैन पढ़िए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट पढ़िए, वॉल्ट थॉरो पढ़िए, उसी इंटरेस्ट के साथ आप एमिली डिकिंसन को पढ़िए. तो ये वैलिडेशन हमें मिलता है जब हमें फॉर नॉलेज होती है, एंड ये फॉर नॉलेज प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है. इफ यू आर लाइकिंग द वे आई एम टेकिंग दिस पेन ऑफ टीचिंग यू 19th century American literature, please do like this video, please do share this video, please do keep a pen and paper with you as you study with me. I won't take much of your time, but this information, if it's in your mind, embedded in your mind, I tell you, your subjective answers will be more valid and more expressive. So western frontier hypothesis क्या आया? western frontier hypothesis आया जिसमें ये कहा गया कि अमेरिका को अगर फिर से हम डिवाइड करते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट में, सो वेस्टर्न में रहते थे, वेस्टर्न में असेंशली वाइल्डरनेस था. So it was felt that after independence, it was felt that there should be this shift from the eastern to the western front. Western front पर shift होना चाहिए और western front से result क्या होगा? Development of America होगा. तो there was always this sort of feeling कि उस पार क्या है? Western front ग्रोथ है, वेस्टर्न फ्रंट डेवलपमेंट है, और वेस्टर्न फ्रंट ही अमेरिकन ड्रीम का प्रोपाउंडिंग आइडिया है. आर्थर मिलर लिखते हैं अमेरिकन ड्रीम पर, अमेरिकन ड्रीम क्या है कि हमारा नेशन ग्रो करेगा, वो वर्ल्ड पावर तो बनेगा, वो फर्स्ट वर्ल्ड नेशन तो बनेगा, लेकिन इस दौरान 20th सेंचुरी में ग्रेट डिप्रेशन भी आएगा. So all because of this thing कि अमेरिकन ड्रीम क्या है, वेस्टर्न फ्रंट ग्रो करे, ईस्टर्न फ्रंट ऑलरेडी कॉलोनाइज्ड था, ऑलरेडी डेवलप्ड था, तो वेस्टर्न फ्रंट विल गिव देम इंडिविजुअल आइडेंटिटी. और वेस्टर्न फ्रंटियर हाइपोथेसिस हमारी इस सेंचुरी का, अर्ली 19th सेंचुरी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है. उस वक्त हमने पढ़ा है अब तक कौन सा राइटर अमेरिकन? थॉमस पेन. इस वक्त लिख रहे थे जेम्स फेनिमोर कूपर एंड वॉशिंगटन इरविंग. ये दो राइटर्स हैं. जेम्स फेनिमोर कूपर, लेदर स्टॉकिंग सीरीज, 5 पार्ट लेदर स्टॉकिंग सीरीज उन्होंने लिखी है, जिसमें आइडियलाइज्ड अमेरिकन वाइल्डरनेस के बारे में उन्होंने बताया है. अब आ गए हम ऑफिशियली अपनी 19th सेंचुरी पर. क्या 15 मिनट्स और 14 मिनट्स टू बी प्रिसाइज जो आपने डिवोट किए हैं, क्या आपकी नॉलेज इंक्रीज नहीं हुई? क्या वैलिडेट नहीं कर रही हैं ये चीजें? बिल्कुल वैलिडेट करेंगी, क्योंकि अपने राइटर्स पर हम अब आएंगे जो ऑथेंटिक अमेरिकन राइटर्स हैं. ऑल राइट,
अब एक बात मुझे बताओ, अगर जब हमने 19th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर ऑफ 19th सेंचुरी को नेहा मैम ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कराया था। इज दैट सो? हमने यहाँ पर रोमांटिसिज्म पढ़ा था, यहाँ पर हमने विक्टोरियन पढ़ा था, और यहाँ पर हमने अर्ली मॉडर्न्स को पढ़ा था। तो जब इंग्लिश लिटरेचर में, कॉलोनाइजर के लिटरेचर में रोमांटिक एज चल रही है, तो उसी सॉर्ट ऑफ इमिटेशन को फॉलो करते हुए 19th सेंचुरी अमेरिकन लिटरेचर में भी रोमांटिसिज्म हमें देखने को मिलेगा। इज दैट ओके? हमारे यहाँ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं, राजा राव क्या एकदम से ही नॉवेल लिखने लगे, या मुल्क राजानंद? ये होती है आर्ट ऑफ इमिटेशन। व्हेन ब्रिटिशर्स एंटर्ड आवर सबकॉन्टिनेंट, ब्रिटिशर्स एंटर्ड with their own literature, Britishers entered with their own genres, novel, prose, पोएट्री, सब हमें प्लेटर पर मिल गया है। हाँ, ग्रंथ और एपिक्स हमारे पास थे। चिल्ड्रंस लिटरेचर वहां स्टार्ट हुआ, यहाँ एंटर कर गया। तो सेम वे 19th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एज वाज गोइंग ऑन, रियलिज्म वाज गोइंग ऑन, सब यहाँ पर फॉलो करेगा एज इट इज। सो यहाँ पर 19th सेंचुरी में वी हैव रोमांटिसिज्म इन लिटरेचर, वी हैव ट्रांसेंडेंटलिज्म, एंड एक छोटा सा एस्पेक्ट में और बताना चाहूंगी जर्नल नॉलेज के लिए, कैलिफोर्निया गोल्ड रश। कैलिफोर्निया की जमीन पर गोल्ड ऐसे था, और अमेरिकन लिटरेचर में कैलिफोर्निया में माइग्रेशन, कैलिफोर्निया के फ्यूचर एस्पेक्ट, ये जो अमेरिकन ड्रीम का आइडिया है ना, इसमें ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। शिफ्ट टू द वाइल्डरनेस फॉर द सेक ऑफ ग्रोथ, alteration of that wilderness, development of that western wilderness, the idea of the western frontier rather than eastern front। तो जो एक आइडेंटिटी गेन करने की बात आती है, वो आती है हमारी वेस्टर्न फ्रंटियर पर। कैलिफोर्निया गोल्ड रश हमारा 1840s, भाई हमारी 19th सेंचुरी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का ही पार्ट है। तो रोमांटिक एज थी हमारी 19th सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी में राइटर्स लिख रहे थे, एमर्सन, थॉरो एंड विटमैन लिख रहे थे। तो यहाँ पर रैल्फ वॉल्डो एमर्सन, थॉरो एंड वॉल्ट विटमैन इस वक्त लिख रहे थे। ऑल राइट, 19th सेंचुरी अमेरिकन लिटरेचर, अर्ली 19th सेंचुरी रोमांटिक लिटरेचर या अमेरिकन लिटरेचर में रोमांटिसिज्म भी था और डार्क रोमांटिक्स भी थे। ऑल राइट, रोमांटिक्स ये 3 थे। डार्क रोमांटिक्स थे नैथनियल हॉथॉर्न, एडगर एलन पो एंड हरमन मेलविले। अब पीजीटी के बच्चे इसे अच्छे से पढ़ना, वॉल्ट विटमैन को। ऑल राइट, नैथनियल हॉथॉर्न को अच्छे से पढ़ लेना। अगर सिलेबस में ये चीज मैं एक और ऐड करना चाहूंगी, एचपीएससी पीजीटी का जो सिलेबस है उसमें केवल ये लिख देना, या ईएमआरएस भी अगर मैं बात करूं, ये चीज लिख देना आपको ओपन एंडेड बना देती है पेपर को। यू डोंट नो, अगर आप एमर्सन पढ़कर नहीं जाते हैं, एमर्सन एक बहुत अच्छे रिप्रेजेंटेटिव राइटर हैं, अगर आप उन्हें नहीं पढ़कर जाते हैं, विल दैट सफाइस? नो। एमर्सन का द अमेरिकन स्कॉलर एसे, सेल्फ रिलायंस एसे, अमेरिकन आइडेंटिटी, अमेरिकन डेमोक्रेसी, अमेरिकन स्कॉलर, अमेरिकन इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं।
You cannot miss that. तो ये जो लिखा गया है ना, ये ट्रिक है जिसमें आपको फंसाया जा रहा है. And we as educators are trying our best to at least talk about the things that are there in 19th-20th century, चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर हो, चाहे वो अमेरिकन लिटरेचर हो. Things should be there in our mind whether or not asked. Just studying those writers is not sufficient. उतना काफी नहीं है. ये ट्रिक है, ट्रिक एग्जाम्पल. Now come to this thing. Come to this thing. हमारे दो तरीके के राइटर्स हैं रोमांटिक एज में, हमारी 19th सेंचुरी में. 19th सेंचुरी में we have romantics, dark romantics, I can go on and on. भाई एमर्सन पर एक अलग वीडियो बन सकती है, थॉरो पे अलग बन सकती है, विटमैन पे अलग बन सकती है, एडगर एलन पो पे अलग बन सकती है, हॉथॉर्न पे अलग बन सकती है. But we don't have this much time. But to give you clarity, my students, I'm making this video just for your sake. रोमांटिक्स में आते हैं एमर्सन. अगर एमर्सन को पढ़ना चाहते हो तो एमर्सन का ऐसे द अमेरिकन स्कॉलर जरूर पढ़ लेना. द अमेरिकन स्कॉलर, क्योंकि अमेरिकन आइडेंटिटी की बात करते हैं, अमेरिकन स्कॉलर कैसा होना चाहिए. बहुत सी इंग्लिश म्यूजेस हमने पढ़ ली हैं. अब अमेरिकन स्कॉलर को खड़ा करना है बुक, नेचर और एक्शन से. ऐसे इंपॉर्टेंट है. एक स्पीच है, डेलिबरेशन है जो फी बेटा कापा सोसाइटी पे उन्होंने डिलीवर की है, और ऐसा ही उनका अमेरिकन आइडेंटिटी से मिलता जुलता ऐसे है सेल्फ रिलायंस. अगर आप इन दो चीजों पे अप्रोक्सीमेटली 100 to 200 वर्ड्स का ऐसे या आंसर प्रिपेयर कर लेते हैं, सफिशिएंट है अमेरिकन आइडेंटिटी पर, कि किस तरीके से वो प्रोपोगेट करते हैं अमेरिकन आइडेंटिटी को. ऑल राइट, अब बात कर लेते हैं थॉरो. एक ही वर्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वॉल्डन. थॉरो कंप्लीटली रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ स्लेवरी. अब स्लेवरी और स्लेव सिस्टम सदर्न पार्ट में चल रहा था, क्योंकि सदर्न पार्ट ऑफ अमेरिका वाज स्टिल एग्रेरियन. फॉलो कर पा रहे हो मुझे? इट वाज स्टिल एग्रेरियन, एंड एज द रिजल्ट ऑफ विच ह्यूज टैक्सेस भी इंपोर्ट हो रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से. तो थॉरो, he was so taken aback and dejected by slavery, so dejected by taxes, that he seek residence in forest area. वॉल्डन में ही घर बना लिया, एक एक्सपेरिमेंट टेकअप किया कि सब कुछ दुनिया, नीति, रिश्ते, सब कुछ मैं छोड़ करके वॉल्डन में सेट हो जाऊंगा. ऑल राइट. अब एमर्सन की एक बात मैं बताना यहाँ पर भूल गई हूं. नेचर जो उनका वर्क है वो ट्रांसेंडेंटलिज्म, ट्रांसेंडेंटलिज्म एक मूवमेंट है बिटवीन रोमांटिसिज्म एंड नेचुरलिज्म. बिटवीन रोमांटिसिज्म एंड नेचुरलिज्म इज ट्रांसेंडेंटलिज्म, जो इमेजिनेशन, नेचर, एक कोहेरेंट रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर की बात करती है. तो ट्रांसेंडेंटलिज्म का जो उनका ये रिप्रेजेंटेटिव फिगर है भाई, हम एमर्सन, हमारे मूवमेंट है, पढ़ लेना. एमएच इब्राहिम की बुक्स अपने पास हैंडी रखो, पीजीटी और एब्राहम्स, हैंडबुक ऑफ लिटरेरी टर्म्स अपने पास हैंडी रखो. कहाँ मिला? ट्रांसेंडेंटलिज्म मिला, फटाफट टी वाले सेक्शन पे गए और समझ लिया कि ट्रांसेंडेंटलिज्म क्या है. दैट विल गिव oomph, दैट विल ब्यूटिफाई योर आंसर. याद करोगे पेपर में बैठकर.
ठीक है। थॉरो, थॉरो के बाद हमारे आ जाते हैं वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन का एक ही इंपॉर्टेंट वर्क मानते हैं हम, लीव्स ऑफ ग्रास। ये कलेक्शन ऑफ पोइट्री है जिसमें उनका है, I wish I should turn to animals and live with them. Songs of myself, very, very, very important. Walt Whitman started writing at around the age of 30 or more. But when he started writing, he instantly became famous because of his elegies that he was writing. इनकी एलिजी भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। विटमैन की पोएट्री के फीचर्स ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलिजी इंपॉर्टेंट है, ओ कैप्टन माय कैप्टन अब्राहम लिंकन को, व्हेन द लिलीज लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम, एलिजी है अब्राहम लिंकन के लिए, यूएस प्रेसिडेंट के लिए, हु वाज बिहेडेड इन द सिविल वॉर। बात करेंगे उनके बारे में भी। तो लीव्स ऑफ ग्रास, सिंबल ऑफ ग्रास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो विटमैन की पोएट्री के फीचर्स हैं वो है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक है, वो डेमोक्रेटिक है, ह्यूमनिस्टिक है, इजी गोइंग उनका स्टाइल है। सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ, ही इज लुकिंग फॉर माई सेल्फ इन द सेल्फ, right? He is looking for his idea of own self. And in the poetries like Oh Captain, My Captain, he is favoring the captain, Abraham Lincoln. He is favoring democracy. All right? All right? पढ़ लेना लीव्स ऑफ ग्रास को। आ गई है हमारी एक और डार्क, हाँ जी, हम किसे भूल गए हैं, ये तो हो गए हमारे रोमांटिक्स। हमारे डार्क रोमांटिक कौन हो जाते हैं? डार्क रोमांटिक में मत भूलना नैथनियल हॉथॉर्न, मोस्ट representative figure of American novel who wrote The Scarlet Letter. पूरे पूरे चांसेस है पेपर में पूछे जाने का। वॉल्ट विटमैन, अच्छा मैं एक चीज और बता देती हूँ, एचपीएससी पीजीडी, विटमैन का लीव्स ऑफ ग्रास का सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ पर एक छोटा सा एक्सर्प्ट प्रिपेयर कर लेना, एमडीयू में प्रिस्क्राइब्ड है। एमर्सन का अमेरिकन स्कॉलर पढ़ करके जाना, एमडीयू में प्रिस्क्राइब्ड है। अगर मैं बात करूं डार्क रोमांटिक्स की, नैथनियल हॉथॉर्न का स्कारलेट लेटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स अ स्टोरी ऑफ वन हेस्टर प्रिन who is asked to wear the badge on her shoulder, letter A, that stands for adultery. Roger Chillingworth, characterization, names बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्थर डिम्सडेल, who is always dim. He has inscribed from his own blood and skin the letter A. She is a lady who lives a very tough life. She has to raise her only child Pearl on her own on the outskirts of the city because she has been known as an adulteress. All right, पढ़ करके जाना, डार्क रोमांटिक वर्क है, वेरी इंपॉर्टेंट, सिंबल ऑफ ए, स्टार मार्क कर लो, क्वेश्चन आ सकता है। ऑल राइट, अब बात कर लेते हैं भाई जी एमिली डिकिंसन की। एमिली डिकिंसन इज नोन फॉर हर symbolism, symbol of death. Her relationship with death is not the one that she's scared of death. No. Emily Dickinson celebrates death. Emily Dickinson looks out for a mate in death. She looks out for life after death. Emily Dickinson has written approximately
1,700 poems. But during her lifetime, only 11 were published. And out of 11, there are many, many known poems. Like I have to recall, I heard of Flybus, MDU में prescribed है. Success is counted sweet by those who have never tasted it. All right. तो इस तरीके की पोएट्रीज उनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. I could not stop for death, but death stopped for me. ये भी इंपॉर्टेंट है. तो एमिली डिकिंसन, डेथ थीम ही इंपॉर्टेंट है इनकी. शी इज अ वेरी वोकैबुलरी की बात करूं, रिक्लूसिव राइटर, रिक्लूसिव, लोनली राइटर, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम पेसिमिस्टिक. समझ रहे हो? छोड़कर मत जाना एमिली डिकिंसन को. सी 1860s से पहले का सब कंप्लीट हो गया है. 19th सेंचुरी अच्छे से कर रहे हैं, 20th सेंचुरी भी अच्छे से करेंगे. 1860s में अब्राहम लिंकन पीएम बनते हैं, स्लेवरी को एबॉलिश करते हैं, सिविल वॉर होता है, उन्हें बीहेड कर दिया जाता है. सिविल वॉर हुआ है क्योंकि फिर से अमेरिका का मैप बनाएंगे हम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. भूलना नहीं है, नेहा मैम ने अमेरिकन लिटरेचर को भी ब्रिटिश लिटरेचर की तरह पढ़ाया है. तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. नॉर्थ में स्लेवरी नहीं थी, साउथ में, सदर्न पार्ट में स्लेवरी थी. नॉर्दर्न पार्ट स्लेव्स को लेकर के आना, सेल करना, टैक्सेस इंपोर्ट करना, कंप्लीटली इन ह्यूमन ट्रीटमेंट दिया जाता था अमेरिकन अफ्रीकन. बहुत लैंगस्टन ह्यूज, जोरा नील हर्स्टन, ये सब किस लिए लिख रहे थे? देयर आईज वर वाचिंग गॉड, राइट? माया एंगेलू. सो नॉर्थ एंड साउथ में कांस्टेंट डेलिबरेशन, कांस्टेंट फाइट, कांस्टेंट स्ट्रगल चल रहा था. नॉर्थ फेवर नहीं करता था, स्लेवरी को एबॉलिश करना चाहता था. तो ये कांस्टेंट फाइट हुआ, सिविल वॉर इन द रीजन ऑफ अमेरिका. 1861 to 65 में हुआ. स्लेवरी एबॉलिश तो हो गई, बट अब्राहम लिंकन, ही वाज अ वेरी गुड प्राइम मिनिस्टर, बट ही वाज beheaded. वॉल्ट विटमैन, डेमोक्रेटिक, इंडिविजुअलिस्टिक, अमेरिकन ड्रीम, अमेरिकन राइटर, ने लिखी When the Lilias last in the dooryard bloomed, ओ कैप्टन, माई कैप्टन. इस दौरान एक राइटर और आए थे, एक या दो. स्टीफन क्रेन, सिविल वॉर राइटिंग. द रेड बैज ऑफ करेज. EMRS के बच्चे अलर्ट हो जाइए. यू नो व्हाई? बिकॉज आपका ऑब्जेक्टिव भी होना है इसी EG में, एग्जाम्पल में. तो ऑब्जेक्टिव के लिए यू नीड टू हैव दिस सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन योर माइंड. सब्जेक्टिव इतना है, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा. बट एज इफ यू टेक माई ओपिनियन, आई फील सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों एक साथ हो जाना आपकी प्रिपरेशन को बैलेंस कर देगा. यू हैव टू स्टडी सो मच कि सब्जेक्टिव 4 मार्क्स का लिखा जाएगा अच्छे से, right? तो keep your pen and paper you as you study with me. Stephen Crane, The Red Badge of Courage, American Civil War के बारे में है. इस वक्त एक राइटर और लिख रहे थे जिनका गॉन बाय करके है, मैं कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन कर दूंगी. 1860s में आता है हमारा रियलिस्टिक फेज, द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन, मार्क ट्वेन. हकलबेरी फिन. अच्छा, हम कॉल मी इस्माइल तो छोड़ा है. कॉल मी इस्माइल, द वेल. किसकी बात कर रही हूं मैं? हरमन मेलविलेस, हरमन मेलविलेस. मॉबी डिक, डार्क रोमांटिक. वेल को पूरी स्टोरी, सब टाइटल द वेल, वेरी इंपॉर्टेंट. EMRS ऑब्जेक्टिव, फाइन. एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन भी प्रिपेयर कर लो फॉर द सेक ऑफ इट.
Adventures of Huckleberry Finn talk about the adventures of Huck and Jim. All right. Gilded Ones भी इन्हीं का ही है. एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर भी इन्हीं का ही है. रियलिस्टिक ट्रांजिशन देख रहे हो भाई, विक्टोरियन एज चल रही है साथ साथ. ऑल राइट, देन वी कम टू नेचुरलिज्म. Naturalism is all about accepting reality as it is. Naturalism. लेकिन जो मैंने कॉन्क्रीट राइटर्स आपको बताए हैं, एमर्सन, वॉल्ट विटमैन, एमिली डिकिंसन, नैथनियल हॉथॉर्न एंड मार्क ट्वेन, डू प्रिपेयर देम अच्छे से. With that, I come to the end of the part 1 of this video, but there's more to it. Stay tuned to our YouTube channel. Please do like, share and comment. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर ध्यान दे रही हूँ. अच्छा, अमेरिकन लिटरेचर के नोट्स भी मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ आप लोगों को. दीज आर द नोट्स. HPSC, PGT and EMRS, we are providing these notes for American literature, जिसमें आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए. हमने इसमें सब मेंशन किया है. रैल्फ वॉल्डो एमर्सन इंक्लूडेड है इसमें. हमारे कंप्लीट आप ये वन शॉट रिवीजन है. आप इसमें आपको कोटेशंस मिलेंगी, ईयर्स मिलेंगे. इसमें आपको सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में बैठने का कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट लिखा गया है. वॉल्ट विटमैन को कंप्लीट कराया गया है यहाँ पर, और एक क्वेश्चन भी दिया गया है वॉल्ट विटमैन की मेजर थीम्स इन विटमैन्स पोएट्री. सेलिब्रेशन ऑफ सेल्फ एंड इंडिविजुअलिज्म, democracy and the common man, body and soul, nature and the cosmos, death, immortality and civil war. आ गया हमारा अब्राहम लिंकन. So I hope you are getting me, you are getting the things that the aspects that I'm trying to make clear. Yes, there is always scope to read more, learn more, always keep this passion on. Thank you. Have a nice day.